Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions Online Classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain third chapter in English literature, that is Mottenai. Okay, so students be ready, open page number 26 at your book, chapter number 3rd. Students, Mottenai is a Japanese word. It is a Japanese word that means wasteful. It refers to wasteful things. It also refers 4Rs. 4R, that means reuse, recycle and reduce. Okay? It refers to waste material, waste things. It is a Japanese word which means reduce, reuse and recycle. In this chapter, the writer talks about the importance of reducing, reusing and recycling of the waste material. He also talks about the harmful impact of the waste things in our life. He says that waste matter can be very harmful for all the living creatures. So, it should be decomposed judiciously and carefully. So, students, let us start it. Let us read the information. Shivendra and Afsana combined. They are two students. They have collected the information which are given here. Mottenai and Swachh Bharat. Change begins at home. Mottenai means, already explained to you, waste material. It is a Japanese word, also refers to reduce, reuse and recycle. स्वच्छ भारत कैंपेन के अंतर्गत ये लेशन है. Our country is facing an overwhelming. Our country is facing means सामना करना. Overwhelming problem. Problem means समस्या. Overwhelming means huge. बहुत बड़ी, very large, very serious. Of garbage dumps. Garbage means waste. Dumps कूड़ा कचरे को कैसे डंप किया जाए, डिकम्पोज किया जाए. Nowadays, not only our country but the whole world is facing this problem. This is a very serious problem for almost all the countries of the world, how to decompose the waste material. It has becoming a very serious problem. It has grown a very critical problem for us. The following data clearly states. नीचे कुछ डेटा दिया गया है. States, clearly states, that means clearly mentions. इस बात को बताते हैं why this problem needs urgent attention, कि इस प्रॉब्लम को urgent attention. Urgent means quick, attention means ध्यान. Okay, the writer says that decomposition of the waste material has grown a very serious problem for almost all the countries of the world. Almost all the countries of the world are facing this problem, but they find no any reasonable solution. He says that in the chapter there is a data which provides some solution, which provide some measures how to decompose waste material, how to reduce it, how to recycle it. Okay, India generates around 60 million tons of garbage every year. राइटर बताते हैं
कि इंडिया में जनरेट मीन्स प्रोड्यूसेस, भारत में उत्पन्न होता है अराउंड 60 मिलियन टन्स। कितना? 60 मिलियन टन्स गार्बेज एवरी ईयर। गार्बेज मीन्स वेस्ट मटेरियल। इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, इट हैज अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन एंड एवरी डे it produces a large amount of waste, that is approximately 60 million tons. Every day 45 million tons of garbage remain untreated, although most of the waste is being treated, but even then about 45 million ton waste remains untreated. That means लगभग 45 मिलियन टन वेस्ट प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता है, उसको डिकम्पोज नहीं किया जाता है, इट रिमेन्स अनट्रीटेड, ऐसे ही पड़ा रहता है। मोस्ट ऑफ द अर्बन सिटीज इन इंडिया आर लाइकली टू टर्न इनटू ह्यूज गार्बेज डंप्स एट सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड कोलकाता। They generate about 10 million tons of garbage every day. यानी लेखक बात करता है कि most of the urban cities, that means cities, large cities, metro cities like Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, Bengaluru, etc. These cities are very large and have a huge population. That's why these cities are generating a large amount of waste every day. It is about 10 million tons of garbage every day. Yani per day there is 10 millions of waste which is produced every day. But all of this waste is not properly decomposed. It remains untreated. Most of the part of this waste remains untreated. This is alarming news. And ये न्यूज कैसे है? Very alarming means stunning. Stunning चौंकाने वाला। ये न्यूज बहुत ही alarming है, चौंकाने वाला है, and should be enough for everyone to understand. और सभी लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं that we have serious garbage problem to deal with, कि हमारे यहाँ कितनी सीरियस प्रॉब्लम है गार्बेज को डील करने के लिए, गार्बेज का प्रॉपरली डिकम्पोजिशन करना, ये किस प्रकार से हमारे लिए इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है। The author talks that decomposition of the waste has become a very serious problem for almost all the cities of urban areas. It has become a very stunning problem and we don't know how to manage with this waste. You can see in Kanpur city near Panki, there are mountains like heap of garbage and anybody can see that this waste is not properly decomposed. There are very huge mountains in that area. So it has grown a very serious problem. The following is a simple 3-step guide on how children can reduce the waste generated at home. But students, हमें क्या करना है? हमें अपने लेवल पर every citizen on its own way try to minimize, try to reduce the waste material at home, at office or wherever you are. यानी हम सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी और ट्राई करना होगा कि दैट वेस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड, इट शुड बी रिड्यूस्ड, इसको हम कम से कम प्रोड्यूस करें। तो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, डिच प्लास्टिक कंप्लीटली। डिच मीन्स गेट रिड, गिव अप, अवॉइड यूजिंग। डिच मीन्स गिव अप, अवॉइड यूजिंग, यानी प्लास्टिक को यूज करना कंप्लीटली बंद कर दें। द राइटर एडवाइजेस इन द फर्स्ट गाइडलाइन that use of plastic should be
banned. It should be strictly avoided. We should not use plastic bags, polythene bags, but you should use cotton or gunny bags. Why? राइटर कहता है क्यों ऐसा? A plastic bottle can take up to 1000 years to biodegrade. प्लास्टिक बॉटल को बायोडिग्रेड होने के लिए दैट मीन्स टू बी डिकम्पोज्ड प्रॉपरली. बायोडिग्रेड मीन्स टू बी डिकम्पोज्ड कंप्लीटली. प्लास्टिक बॉटल को कंप्लीटली डिकम्पोज होने में लगभग 1000 years का टाइम लगता है. इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड to be decomposed. That's why it remains undecomposed in the soil and creates a very serious problem. Plastic is bigger threat than nuclear weapons as Earth can't digest plastics and it can be fatal. Writer डिस्कस करता है, क्या डिस्कस करता है? प्लास्टिक इज बिगर देन न्यूक्लियर वेपन्स. ये जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, थ्रेट मीन्स प्रॉब्लम, चैलेंज. प्लास्टिक की प्रॉब्लम न्यूक्लियर वेपन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है. इट इज सेड दैट प्लास्टिक कैन बी वेरी डेंजरस. इट कैन बी मोर डेंजरस देन एटॉमिक वेपन्स लाइक एटम बम्स एसेट्रा. Why? Because Earth can't digest it properly. It takes a very long period of time to be decomposed completely. इसको डिकम्पोज होने में, रूटेन करने में बहुत लंबा समय लगता है. About 1000 years of time, one bottle can be decomposed. So it can be very serious problem for us. A million birds, that means 100,000 whales. 1 million birds, that means 100,000 whales. Shark, seals, dolphins, turtles die every single year because of plastic pollution. ऐसा कहा जाता है कि लगभग हर साल प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से लगभग 1 million, that means 100,000 whales, शार्क, फिश, डॉल्फिन्स, टर्टल, हर साल इनकी मौत हो जाती है. इट इज सेड दैट एवरी ईयर मोर देन 100,000 whales, शार्क, टर्टल्स, डॉल्फिन्स डाई बिकॉज ऑफ प्लास्टिक प्रॉब्लम. प्लास्टिक टेक अराउंड 500 to 1000 years टू डिग्रेड. क्योंकि प्लास्टिक को डिग्रेड होने में, डिकम्पोज होने में, रूट आउट होने में 500 से लेकर के 100 ईयर्स का, 500 to 1000 ईयर्स का टाइम लगता है. यानी 500 से 1000 वर्ष का समय लगता है. एंड इट कैन डिस्ट्रॉय मैरीन लाइफ कंप्लीटली. दैट्स वाई इट कैन बी वेरी फैटल for the marine life, for the creatures living in sea, ocean and rivers. Okay, what can you ditch easily? तो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम आसानी से अवॉइड कर सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं? So next time you go for picnic, take your own cups and plates with you. इसलिए जब भी हम कहीं जाएं, wherever we go, either for picnic or any other celebration, we should carry jute gunny bags, our own cups and plates. Okay, the plastic cups and plates available at small shops are extremely harmful. क्योंकि जो प्लास्टिक कप्स और प्लेट्स हमें मिलते हैं शॉप्स पर, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं. they can't be decomposed in the soil and these are made of cheap chemicals. और ये बहुत ही घटिया, cheap means inferior क्वालिटी की प्लास्टिक के बने होते हैं. That's why they can be very poisonous and harmful for the soil as well as for the marine life. That's why it is advised that we should try to avoid using plastic bags, polythene bags. Instead we should carry our own cups and plates wherever we go for any celebration.
whenever we are going to market, we should carry gunny or jute bags with us. Okay, so students, today I am going to stop here. Now next day we will discuss the remaining passages from page number 29. Till then, revise this passage, watch this video again and again. Okay, thank you for attending today's class. Good morning student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in previous class we have discussed unit first of chapter 3rd. Now today we will start with second unit, which is various forms of energy and their interconversion. So student, in nature we find energy in various forms such as mechanical energy, and heat energy, and light energy, and sound energy, and electric energy, and chemical energy, and magnetic energy, and nuclear energy. Student, these all are various forms of energy. Now firstly we will discuss with mechanical energy. Now what is mechanical energy? Student, the energy possessed by a body due to its state of rest or state of motion is called mechanical energy. So student, what is mechanical energy? The energy possessed by a body due to its state of rest or state of motion is called mechanical energy. Student, this energy is divided into two forms. First is potential energy, and second is kinetic energy. Now what is potential energy? Student, the energy possessed by a body on account of its position or configuration is called potential energy. So student, what is potential energy?
the energy possessed by a body on account of its position or configuration is called potential energy. Students, suppose if we carry a brick to the top of the building, then we will do some amount of work against the force of gravity, and doing this work some energy is lost, and this lost energy is stored in bricks in the form of potential energy. Now, what is kinetic energy? Student, the energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. So student, what is kinetic energy? The energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy, and this kinetic energy depends upon its mass and velocity. Student, suppose if you are walking, running, then you have kinetic energy. Means to say, if any body is in rest of motion, then it has kinetic energy. For example, running train, and flowing water. Etc. Now, what is heat energy? Student, the energy released when we burn wood, coal, oil or gas is called heat energy. So student, what is heat energy? The energy released when we burn wood, coal, oil or gas is called heat energy. Student, suppose if we cook food in a pressure cooker, then the heat energy changes water to steam, and this steam lifts the weight on the top of the lid and vessels. This lifting of weight suggests that heat is a form of energy and which is capable of doing work. For other and some other examples, steam engine and thermoelectric powerhouse, and which converts heat energy into electric energy. Now, what is light energy? Light energy. Light is a form of energy in presence of which other objects are seen.
So student, what is light energy? Light is a form of energy. Light is a form of energy and in presence of which other objects are seen. Now student, what is magnetic energy? The energy possessed by a magnet is called magnetic energy. So what is magnetic energy? The energy possessed by a magnet is called magnetic energy. Student, the magnet can attract certain substances like nickel and cobalt and iron, etc. These substances are known as magnetic substance. Magnetic substance. For example, magnetic energy is used in electromagnets fixed in the cranes to lift heavy loads of iron. So student, today's class is over. Thank you. Good morning students, welcome to the online class of Shivaji Group of Institution. In this chapter, elements, compound and mixture. In this chapter, we have earlier discussed what is compound. मैंने आपको पहले बता दिया है what was compound. इसके अलावा explain किया था formula या chemical formula of the compound, है ना. तो compound basically क्या था कि जब दो या दो से ज्यादा elements, when two or more elements combine together in a fixed ratio, then the compound is formed. जब दो या दो से ज्यादा elements combine होते हैं in a fixed ratio, तब क्या बनता है? compound बनता है. और compound जो होते हैं उनको अपना एक definite उनका chemical formula होता है, ठीक है. तो chemical formula basically क्या होता है? The symbolic representation of the compound is known as chemical formula. chemical formula क्या है? आप कह सकते हैं symbolic representation या you can say short term representation, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की और उनके फॉर्मूलाज की, ठीक है. और ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आगे काम आने वाले हैं, ठीक है. तो पहले देखिए आप फॉर्मूले ऑफ सब इंपॉर्टेंट कॉमन कंपाउंड. तो पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन से लिया गया है, क्लोरिक मतलब क्लोरीन से लिया गया है. तो इसका फॉर्मूला हो गया H यानी हाइड्रोजन और क्लोरिक यानी कि Cl. तो इसका फॉर्मूला हो गया बेटा HCl, ठीक है. उसके बाद देखिए नाइट्रिक एसिड, ये भी एक एसिड होता है. तो इसमें देखो नाइट्रिक एसिड एक्चुअल में ये वर्ड अपने आप में कोई एलिमेंट्स को नहीं बता रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा HNO3, ठीक है. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3. फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा सल्फर प्रेजेंट होता है, फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है. उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड. जहां पे आपको हिंट मिल रहा है उसके नेम से, वहां हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं. जहां पर नहीं मिल पा रहा है तो आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, ठीक है. अब आप देखिए इसमें सोडियम और हाइड्रोक्साइड. तो पहला क्या दिख रहा है? सोडियम, जिसका सिंबल क्या बताया था मैंने? Na. हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? OH. तो NaOH इसका नाम हो गया. उसके बाद देखो कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम सिंबल हो जाता है Ca और ऑक्साइड सिंबल हो जाता है O. इसका फॉर्मूला क्या बना? CaO. उसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट. तो सोडियम बेटा Na होता है, ठीक है. सोडियम का मतलब Na और कार्बोनेट का मतलब CO3. तो इसका फॉर्मूला हो गया Na2CO3. अब क्योंकि ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है बेटा, इसी का एक नाम वॉशिंग सोडा होता है, तो इसमें 10 मोल्स ऑफ वाटर ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या बना देता है? वॉशिंग सोडा, ठीक है. और उसके बाद देखिए कैल्शियम कार्बोनेट. कार्बोनेट अभी हमने आपको बताया जो CO3 होता है वो कार्बोनेट होता है. अब यहाँ पे सोडियम के साथ CO3 जुड़ा था तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया. यहाँ क्या कह रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि अब क्या है? सोडियम की जगह क्या आ जाएगी? कैल्शियम, और
एज इट इज CO3, ठीक है। उसके बाद देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई या हाइड्रोजन, इसको दो नाम है बेटा इसके, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप कह सकते हो उसे, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। सिंपल है, इसका नेम के अकॉर्डिंग ही इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखा है सोडियम, तो ये आपका हो गया सोडियम, और बाई का मतलब हाइड्रोजन होता है, मैंने आपको पहले ही इंडिकेट किया, तो आप इसे कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और यू कैन से सोडियम हाइड्रोजन, और CO3 मतलब कार्बोनेट, तो इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यू कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट वन इज फेरस सल्फाइड, ठीक है। फेरस सल्फाइड क्या है बेटा, फेरस मतलब आयरन, ठीक है, फेरस का मतलब होता है आयरन, और सल्फाइड का मतलब सल्फर से लिया गया है। तो आप देखिए इसका फेरस सल्फाइड, फेरस मतलब Fe और सल्फाइड मतलब सल्फर, तो फेरस क्योंकि लैटिन के वर्ड आयरन जो है, इसका दो नाम है इसके, फेरस सल्फाइड और यू कैन से आयरन सल्फाइड। आयरन क्या होता है, लैटिन के वर्ड फेरम से बना हुआ था, इसलिए इसको फेरस कह रहे हैं, तो ये फेरस सल्फाइड का फॉर्म बन गया FeS। उसके बाद देखिए सोडियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na, सोडियम का सिंबल Na, और क्लोराइड किससे लिया गया है, Cl से, तो NaCl, और इसी का नाम होता है कॉमन सॉल्ट, जो कि आप खाने में यूज करते हैं, और भी कई जगह कॉमन सॉल्ट का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का सिंबल K होता है, और नाइट्रेट जो है वो NO3 से लिया गया है। जैसे आपको नाइट्रिक एसिड में NO3 दिख रहा था ना, ठीक है, नाइट्रिक एसिड में NO3 है, उसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट में भी NO3 है। फर्क सिर्फ इतना है, नाइट्रिक एसिड में H के साथ NO3 लगा हुआ है, उसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट में K के साथ NO3 लगा हुआ, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Al, एल्यूमिनियम मतलब Al, और क्लोराइड मतलब Cl, AlCl3 इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट फिर अगेन NO3, और सिल्वर का फॉर्मूला, सिल्वर का जो सिंबल होता है वो Ag, तो इसका जो फॉर्मूला बना हो गया ना AgNO3, सिल्वर को सिंबलाइज किससे करते हैं, Ag से, और नाइट्रेट क्या है अगेन आपका NO3, तो क्या फॉर्मूला बन गया AgNO3। उसके बाद देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर का सिंबल Cu, सल्फेट जो होता है वो SO4 होता है, तो कॉपर सल्फेट क्या हो गया CuSO4, इसी का एक नाम ब्लू विट्रियॉल होता है, ठीक है। उसके बाद जिंक क्लोराइड, जिंक का सिंबल Zn, और क्लोराइड जो है आपको CH2 से मिलता है, तो इसका नाम, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ZnCl2 बनेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन गैसियस कंपाउंड, यानी अब क्या करना है आपको, गैस वाले कंपाउंड के फॉर्मूला लिखने हैं। तो पहला आपका है कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन का मतलब आपको पता है कार्बन क्या होता है, डाई मतलब दो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो इसका नाम देखो फॉर्मूला CO2, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर डाई ऑक्साइड। मेथेन, हाँ ये थोड़ा अलग है, इसका फॉर्मूला भी CH4 होता है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, मेथेन CH4, ठीक है। उसके बाद देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन आपको समझ में आ रहा है, ये है मोनो का मतलब होता है सिंगल, अगर यहाँ डाई होता तो अगेन यही बनता CO2, या ट्राई होता तो CO3, क्योंकि यहाँ मोनो है, मोनो मतलब सिंगल, तो CO, तो ये क्या हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर का मतलब S, ट्राई का मतलब 3, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला क्या बना SO3, समझ में आ गई बात। उसके बाद नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन का मतलब N, डाई का मतलब 2, ऑक्साइड का मतलब O, फॉर्मूला क्या बना NO2। और ये सिंबल जैसे जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें देखो ये 3 कहाँ बनाया, नीचे बनाया, 2 नीचे बनाया, जो जिसके सफिक्स में बना हुआ है, जो जिसके नीचे बना हुआ है उसको वैसे ही लिखना होता है, क्योंकि जो भी फॉर्मूला होते हैं वो एज इट इज लिखे जाते हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं कर सकते जैसे मैंने ये NO2 लिखा है आप ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत, ठीक है। इसको लिखने का तरीका यही है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो स्टीम, स्टीम यानी कि भाप, भाप क्या होती है, इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर अगर गैस बन जाए तो वो क्या बनाता है, स्टीम तो बनाता है, वेपर तो बनाता है, तो इसका फॉर्मूला भी अभी वो H2O ही है। वेपर भाई ठंडी हो जाएगी तभी तो वो पानी ही बन जाएगी ना, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा H2O। उसके बाद
ठीक है। उसके बाद देखो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, आयरन का ऑक्साइड FeO, कॉपर का ऑक्साइड CuO और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो जाएगा Al2O3। एल्यूमिनियम ये हो गया, ऑक्साइड ये हो गया, ठीक है। तो क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, इसलिए फॉर्मूला क्या बना Al2O3। ये आपको आगे की क्लासेस में पढ़ने मिलेगा, इसलिए अभी सिंपल सा याद कर, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला, जो भी केमिकल फॉर्मूला होता है वो किस तरह से हमने निकालना है, और जहाँ पे मान लीजिए कोई ट्रिक नहीं समझ में आ रही है तो उसको बस सिंपल से याद कर लेना। जैसे देखो नाइट्रिक एसिड में नहीं कुछ समझ में आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं यार, तो यहाँ पे आप उसे याद कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट कंपाउंड ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे और अपने आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, आई विल टेल यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Hello students, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, in previous video I have discussed chapter 1st, 2nd and 3rd in history. Today I will explain you chapter 1st, civics. The name of first chapter is Constitutions of India. Constitutions of India means in Hindi भारत का संविधान. The topic of the chapters are first meaning of the constitutions. Meaning of the constitutions यानी what means constitutions, माने constitutions शब्द का मतलब क्या है. Second point is your topic. Second is the beginning of new era. Beginning of new era. So first we discuss about कि we need rules and regulation. First we discuss here. Let's start कि what means constitutions. So we need rules and regulation, यानी we need rules and regulation to lead an organized social life. Thus we say if we wanted to lead a organized social life, so we need to study about some rules, यानी some basic rules and regulation. Understand students? We have certain rules and codes to able to perform purposeful activities. Now students, if we have certain rules and if we wanted, we need to read the rules and regulation to organize a social life, so we have to certain rules. And so we have certain rules and codes. We have certain rules and codes to able to perform purposeful activities. Thus we say कि if we wanted to many purposeful activities, so we have too many rules and codes. Similarly, rules are essential for governing a country. Thus we say rules are essential for governing a country. It's not only everything, every activities we need to lead a successful life when we follow the rules. Thus we say कि governing a country माने एक country को govern करने के लिए rules are essential. माने rules governing a country माने एक country को govern करने के लिए needs some essential rules. माने हमें क्या होता है, कुछ essential rules की need होती है.
if we wanted to live a social life, then we follow rules and regulation. And every country, yeah, governing a country, we need to follow the some essential rules. All modern states, तो we discuss कि in olden time when there were no constitutions, yeah, though there were no rules for the government, so how they govern their country. So now we discuss here कि all modern states, at that time all modern states have their constitutions. आज क्या है, सभी मॉडर्न स्टेट्स के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशंस है. गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, माने जो भी हमारी क्या होती है, गवर्नमेंट, माने गवर्नमेंट यानी सरकार, माने जो भी हमारी गवर्नमेंट है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशंस आर नाउ run according to defined rules. माने every government and administration works according to the defined rules. माने ये सभी क्या करते हैं, सारे अपने, माने जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर होता है, सारे लोग वर्क यानी काम करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रूल्स, माने रूल्स के अकॉर्डिंग, एंड प्रोड्यूस and not according to individual ideas. But they cannot work according to individual ideas to govern a country. मतलब वह किसी कंट्री को गवर्न करने के लिए according to individual ideas, माने अपने individual ideas यूज नहीं कर सकते. Understand? India is a governing with a base of Indian Constitution. Now we discuss about our country India. माने हम अब अपनी कंट्री इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं. तो इंडिया क्या है, इंडिया इज गवर्निंग, यानी इंडिया इज गवर्निंग विद द बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. माने इंडिया आज अगर अपने देश को गवर्न कर रहा है तो किसके अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, माने भारतीय संविधान के, which reflect the faith, माने which reflect माने इनमें क्या है, which reflect the faith, aspirations of the people of India. माने Indian constitutions work या reflects which faith, माने give to the people क्या, faith and aspiration. माने ये क्या देता है, faith देता है, aspiration यानी प्रेरणा देता है. It is the supreme law of the land. माने thus we say कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, नाउ वी नो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. ये क्या है आज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ, माने सुप्रीम लॉ है ऑफ द लैंड, माने लैंड का. इवन पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशंस. इवन पार्लियामेंट्स cannot, माने पार्लियामेंट जो है वो cannot override the constitutions. Now students, I will again discuss कि इंडिया governing their country with the ways of Indian constitutions. माने इंडिया जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बेस पर अपने कंट्री को गवर्न कर रहा है. Thus we say कि which माने it reflects to our people faith and reflection, and it is called the supreme law of the land. Students, let's we discuss the meaning of the constitutions. What is the meaning of constitution? So the constitution, what is the meaning of constitutions? तो constitution is a documents, माने constitutions क्या है, constitutions is a document of any country, माने constitutions किसी भी देश का एक वो documents है which contain details how to govern our country, माने in which given to detail
कि हाउ टू गवर्न our country. It is a framework, but it is a framework within which a government has to function. but it is a framework, but इसे क्या, it is a framework, but framework कहा जाता है within which a government has to function, but in according to which a government has a function, मतलब जिसके according government work करती है. It defines the power and functions of different organ of the government. It defines, any constitutions define the power and function, माने constitutions में government के power और functions को define किया जाता है. Understand? And also enumerate the fundamental rights and also enumerate the fundamental rights and fundamental duties of the citizen. And we also discuss about the fundamental rights and fundamental duties of the citizen in constitutions. Our constitutions explain our national goal, माने हमारा constitutions जो है वो हमारे गोल, माने गोल के बारे में मैंने गोल्स हमारे कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी एंड सेकंड सोशलिज्म, समाजवाद, सेकुलरिज्म, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता, फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड, माने इसे क्या कहा जाता है, ब्रदरहुड यानी भाईचारा. The meaning of constitutions. So now students, you understand what is the meaning of constitutions. We discuss the beginning of new era. Beginning of new era, on 26 January 1950, the Indian constitutions began here. We began to govern ourselves according to the rules. माने 26 January 1950 को we began. But Indian people in India began to govern ourselves according to rules. But क्योंकि before independence, but independence से पहले we have no certain rules. माने हमारे पास कोई भी certain rules नहीं होते थे. We are governed, our country was governed by British rule. माने हमारा country जो था वो British rule द्वारा govern होता था. So according to the rules framed by our own elected representative. माने इस किसे कॉन्स्टिट्यूशन, माने कॉन्स्टिट्यूशंस के जो कुछ रूल थे उसे फ्रेम किया गया, यानी फ्रेम किया किसने, our own elected representative, माने जो हमारे elected representatives, माने जो भी हमारे चुने गए representative थे. The constitutions was enforced on this day, माने so we know the constitutions enforced, माने इस दिन enforced, माने इस दिन को ही constitutions का enforced day कहा जाता है. This is celebrated in our country with great joy and one of the national festival. So we celebrated 26 January as a national festival. Now students, I have discussed two topics of this chapters, and I will discuss other topic of this chapter in next video. Thank you for attending this class. मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सुंदर कथन सुन लीजिए. सुंदर कथन यानी सूक्ति जिसको हम कहते हैं. सूक्ति का मतलब होता है सु में सुंदर और उक्ति में कथन. तो आज की सूक्ति है बच्चों, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है. इसका अर्थ है कि जो विद्यावान व्यक्ति होता है यानी विद्वान व्यक्ति होता है उसके अंदर विनम्रशीलता
होनी चाहिए, विनय होना चाहिए। आप कितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन अगर आपके अंदर विनयशीलता नहीं है तो सही मायने में आप शिक्षित नहीं हैं। इसलिए अपने जीवन में इस उक्ति को अमल में लाएं। विद्या विनय देती है और अपने अंदर इस गुण को आप विकसित करें। तो बच्चों, चैप्टर 3 लंग लकारः मध्यमा पुरुषः, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब इसकी एक्सरसाइज अनुशीलनम देखिए। लिखितम में ये एक्सरसाइज है फर्स्ट, उचित क्रियापद से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। ये कॉलम बने हैं धातु, अर्थ, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो FIB दी हुई है। जहां जहां FIB यानी रिक्त स्थान जहां है वो मैंने वर्ड्स लिख रखे हैं, और ऑलरेडी जो वर्ड्स आपकी बुक में प्रिंट है, लिखा हुआ है, वो वहां मैंने सिर्फ लाइन की है। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान वाले शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आपको अपनी बुक में पेंसिल से ये शब्द फिल करना। ठीक है, तो नृत्य धातु में अनित्यताम, यहाँ पर अनृत्य शब्द आएगा। ठीक है, खेल धातु में एक वचन में अखेला शब्द आएगा। गण धातु, हाँ बच्चों, इसके बाद देखें, गण धातु है जिसका अर्थ है गिनना। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन का शब्द आएगा अगणयतम। गय, गय मीन्स गाना। ठीक है, ये गय धातु होती है, इसका रूप चलता है गायति, गायतः, गायन्ति। तो यहाँ लग लगा मध्यम पुरुष, बहुवचन में रिक्त स्थान में आपको लिखना है अगायत। रक्ष धातु है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, इसका मध्यम पुरुष एक वचन होगा अरक्षा। अस धातु, अस मीन्स होना। अस धातु लंग लकार, मध्यम पुरुष द्विवचन में शब्द आएगा आस्तम। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मैंने वही शब्द लिखे हैं जो रिक्त स्थान वाले हैं, और आपको ये शब्द अपनी बुक में लिखना है। ठीक है, अब आगे एक्सरसाइज नंबर 2 मैं कराती हूँ। हाँ बच्चों, अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 3, कोष्ठक से उचित रूप चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ये सेंटेंस लिखे हैं और आपकी बुक में कोष्ठक में वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो जो करेक्ट वर्ड है यानी उचित शब्द जो है वो मैंने चुन के यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थान में। तो है त्वम किमर्थम आहसा, यूयम दुग्धम अपिबत। अपिबत में यहाँ हलंत नहीं लगाना है। वृक्षात् पत्राणि अपतन्, गजेन्द्रः निबंधम अलिखत्, युवाम उद्याने अभ्रमतम, त्वम फलम न अखाता। उचित रूप है यानी जिस पुरुष और वचन का करता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया का प्रयोग है, और ये मैंने अंडरलाइन की है। ये आपको रिक्त स्थान में शब्द लिखना। अगली एक्सरसाइज नंबर 4 है उचित कर्ता चुनकर के वाक्य पूरा कीजिए। इसमें आपने क्रियाएं चुनी, अब इसमें आपको कर्ता चुनना है और रिक्त स्थान में लिखना है। ठीक है, इसमें है पहला सेंटेंस, युवाम पुष्पम अजिघ्रत, यूयं पुत्र अक्रीडत्, त्वं गृह कार्यं कदा अकरोः, त्वं असत्यं न अवदः, यूयं विद्यालयम् अगच्छत्, युवां नृत्यम् अपश्यत्। ठीक है, तो ये जहां रिक्त स्थान है वहां पर आपको उचित कर्ता चुन करके लिखना है, यानी ये शब्द आपको अपनी बुक में रिक्त स्थान पे लिखना है। पहले एक्सरसाइज में आपने क्रियाएं लिखी थी रिक्त स्थान में, और अगली एक्सरसाइज में कर्ता लिखने हैं आपको रिक्त स्थान। अब है एक्सरसाइज नंबर 5, वाक्य को निर्दिष्ट वचन में बदलिए। जैसा कहा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस चेंज करके
मैंने यहाँ लिखे, ठीक है। तो पहले का उत्तर है त्वं पत्रम अलिखा। दूसरा है किम युवाम रक्त दुर्गम न अपश्यताम, किम युवाम रक्त दुर्गम न अपश्यताम। थर्ड का है करेक्ट जो सेंटेंस है वो ये है त्वं पाठम किमर्थम न अस्मरः, यूयम् आचार्यम् अनमत्। त्वं पत्रमलिखाः किं युवां रक्तदुर्गं न पश्यताम्, त्वं पाठं किमर्थं न स्मरः, यूयम् आचार्यम् अनमत्। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद का जो अभी 2 सेंटेंस और रह गए हैं वो मैं लिख रही हूँ, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ देखिए, नेक्स्ट है युवाम प्रातः, युवाम प्रातः तरणताले अतरताम। अगला है यूयम् त्रिचक्रिकया अपरम अगच्छत्, यूयम् त्रिचक्रिकया, त्रिचक्रिकया किसको कहते हैं पता है? रिक्शे को, या जो ऑटो वगैरह होते हैं। त्रिचक्रिकया आपणम अगच्छत्। यहाँ हलंत नहीं लगेगा बच्चों अगच्छत् में, अगर हलंत लगा दोगे तो ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपको हलंत नहीं लगाना है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट हो गई है। लास्ट के 2 सेंटेंसेस हैं युवाम प्रातः तरणताले अतरताम, यूयम् त्रिचक्रिकया आपणम अगच्छत्। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट हो गई है बच्चों। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 6 कराती हूँ। इसमें क्या है, निम्नलिखित धातुओं को दिए गए वचन में बदलिए। निम्नलिखित धातुओं को दिए गए वचन में बदलिए। तो दिया गया वचन है क्री धातु एक वचन। देखिए मैं यहाँ पर धातु लिख रही हूं, खाद, दा, प्रच्छ, गर्ज, पट। ठीक है, और यहाँ पर उत्तर है तो क्री धातु का शब्द बनेगा अगरोह, अखादर, अयच्छताम, अयच्छताम। प्रच्छ धातु का बनेगा अप्रक्षाः, अगर्जर और अपठतम। ठीक है, तो जिस वचन में बताया गया है उसी वचन में वाक्य क्रिया को बदल करके मैंने यहाँ उत्तर में लिखा। तो क्री धातु का होगा करोह, खाद, अखादर, दा, अयच्छताम, प्रच्छ, अप्रेक्षाः, गर्ज, अगर्जर, पठ, अपठ। ठीक है, ये उत्तर है। ओके, ये एक्सरसाइज नंबर 6 का उत्तर है। अब आगे एक्सरसाइज नंबर 7 है। उदाहरण के अनुसार रेखांकित क्रियापदों को लग लकार में बदलिए। ठीक है, जो अंडरलाइन वर्ड दिए हुए हैं आपकी बुक में बच्चों, उसको लग लकार में बदल के लिखना है।
तो ये है एक्सरसाइज नंबर 7। ठीक है, तो लग लगा में जब आप बदलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सेंटेंस है। ठीक है, तो पहला अंडरलाइन वर्ड है पश्यसि। ठीक है, ये है, तो इसका उत्तर होगा पश्यसि का होगा अपश्य। जिघ्रताः रचयसि रक्षत वदत और है गायथा। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये जितनी क्रियाएं हैं ये वर्तमान काल की है, लट लकार की, तो इनको लंग लकार में बदलना है। तो जिघ्रति का जिघ्रता का होगा अजिघ्रतम, अजिघ्रतम। अरचयः रचयसि का अरचयः। अरक्षत अवदत अगायता। ठीक है, अगायतम, अगायताम तो द्विवचन है यहाँ पर। ठीक है, अगायतम शब्द आएगा। तो ये जितने भी अंडरलाइन मैंने की है ये लट लकार की क्रिया है और आपको बोला गया है लंग लकार में बदलने के लिए। तो जब आप लंग लकार में बदलेंगे तो बनेगा शब्द अपस्यः अजिघ्रतम अरचयः अरक्षत अवदत अगायत। ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ पर क्रिया ही चेंज करके लिखेंगे क्योंकि अंडरलाइन में सिर्फ क्रिया ही दी है, यानी धातु रूप दिया है। इसी को चेंज करके ही आपको रिक्त स्थान में लिखना है। क्लियर? अब आइए एक्सरसाइज नंबर 8, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसका प्रश्न है एक नंबर है, एक पदेन उत्तरन अध्यापिका कम अपृच्छत। तो आप लिखेंगे विनोदम, इसको टिक करें, विनोदम शब्द को आप टिक करें। ठीक है, इसी का दूसरा प्रश्न है कहा उच्चय गर्जत। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सिंहा, सिंहा शब्द को आप टिक करेंगे। ये एक पदेन उत्तरत है, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। एक्सरसाइज नंबर 8। इसी का नंबर 2 क्वेश्चन है विनोदः हया कुत्र अगच्छत्। विनोदः हयाः कुत्र अगच्छत्। इसको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है बच्चों। तो इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा विनोदः हयाः, कहाँ गया था वो, प्राणी उद्यानम, प्राणी उद्यानम अगच्छत्। ठीक है, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। फिर लास्ट है भाषिक कार्य, ये है भाषिक कार्य जिसमें व्याकरण पोर्शन आता है आपका। ठीक है, इसका पहला है अखादन पदे कह लकार। तो आप टिक करेंगे लंग लकार, इसको टिक करना। ठीक है, हंसो पदे किम वचनम, हंसो पदे किम वचनम। तो हंसो पद कौन सा है वचन, द्विवचनम, हंसो पदे द्विवचनम, इसे टिक करना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 8 थी जिसपे एक पदेन उत्तरम में ये शब्द आपको टिक करने हैं।
फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। विनोदा हया कुत्र गच्छत्, तो आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे विनोदा हयाः प्राणि उद्यानम् अगच्छत्। क्लियर। अब भाषिक कार्य में आपको बताना है कि वो पद किस लकार का है, तो आप लिखेंगे लंग लकार, इसको टिक करेंगे। दूसरा हंसोपदे किम वचनम, तो आप लिखेंगे द्विवचन और इसे द्विवचन को टिक करेंगे। तो इस तरह से बच्चों लंग लकार मध्यमा पुरुषा चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो गया है। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कराई है इसे आप बुक में पेंसिल से फिल करेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं चैप्टर 4 स्टार्ट कराऊंगी। ओके, धन्यवाद।